वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने किया था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हमने देखा था जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड का मूव करती है, जिसको हम नाम देते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और जब कोई और फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज होती है तो उसे हम इंक्रीज और डिक्रीज का नाम देते हैं। फेवरेबल फैक्टर्स, अनफेवरेबल फैक्टर्स। इंक्रीज इन डिमांड हम कल कंप्लीट कर चुके थे, अभी डिक्रीज इन डिमांड पेंडिंग है। पेज नंबर 46 पे आइए। पेज 46 पे आपने ऑलरेडी उसमें केस 1 बनाया हुआ है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो यू मस्ट बी ऑन पेज 47। लिखिए केस 2 डिक्रीज इन डिमांड। Write down case 2 decrease in demand और ये डायग्राम बनाइए। आई एम गिविंग यू 2 minutes, आई एम गिविंग यू कंप्लीट 2 minutes। आप ये डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। Downward sloping demand curve, leftward shift, price OP, figure 2. Take your 2 minutes and wait. When it is done, I will be giving you explanation after 2 minutes. Okay, now write down the explanation of this, जिससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। DD is a downward sloping demand curve of a commodity. DD is a downward sloping demand curve of a commodity, full stop. At price OP, quantity demanded is OQ. At price OP, quantity demanded is OQ, full stop. Due to some unfavorable factors affecting demand of the commodity, due to some, full stop के बाद आएगा, due to some unfavorable factors
affecting demand of the commodity, affecting demand of the commodity except price, except price. कौन सा प्राइस? ओन प्राइस, अपना ही प्राइस, ये नहीं सब्स्टिट्यूट का प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री का, अपना प्राइस छोड़ के, एक्सेप्ट इट्स ओन प्राइस, एक्सेप्ट इट्स प्राइस, कॉमा dd will shift to the left to d0 d0, dd will shift to the left, dd will shift to the left to d0 d0, full stop. Now at same price OP, now at same price OP, less is demanded, that is OQ0. Less is demanded, that is OQ0. Full stop. Now the most important line. This leftward shift, this leftward shift of the demand curve, this leftward shift of the demand curve is known as decrease in demand, is known as decrease in demand, full stop. कूल. नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसी के नीचे लिख लीजिए क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. Distinguish between increase in demand and decrease in demand. Answer. 4 marker question है. I am not giving you the exact answer, I am just giving you the hints कि किस तरीके से attempt करना है. Basis. First is meaning. Increase in demand refers to the situation when there is a rise in quantity demanded due to some favorable changes except in the factors affecting demand except its own price. Decrease in demand refers to a situation when there is a fall in the demand or quantity demanded due to some unfavorable factors affecting demand except its own price. Number 2, schedule. Price 10 10, demand 100 110, price 10 10, demand 180. Third, diagram curve. Increase in demand जो रब कर दिया, decrease in demand. Fourth, shifting. Rightward shift, leftward shift. डायग्राम की एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, 4 मार्क्स का है, पहले से ही हम डायग्राम बना चुके हैं, 2 डायग्राम्स 4 मार्क में. अगर एक्सप्लेनेशन देनी है तो 1 लाइनर विल बी मोर देन इनफ. डन. इसके अलावा रीजंस भी आ सकते हैं, वो हम आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के हैं. देयर आर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस. कुछ 1.5 लेक्चर लगेगा डेफिनेटली ये क्वेश्चंस करने में. Now let's start with the questions. Let's start with the questions of the topic change in quantity demanded and change in demand. Open your copy if you are maintaining the proper notes. हम हैं पेज नंबर 49 पे.
पेज नंबर 49. Question number 2. One marker question. Question number 2. What causes an upward movement along the demand curve of a commodity? Demand curve ये रहा. Price OP, demand OQ. Upward movement. डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट क्यों आती है? डिमांड कर्व में ऊपर की तरफ हम मूव कब क्यों करते हैं? व्हाट कॉजेज, क्या रीजन है? द रीजन इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी. राइट डाउन. सेकंड का आंसर, अपवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व इज ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट on the demand curve is due to increase in the price of the commodity. Increase in the price of the commodity. Next question. Question number 4. What will be the impact on the demand curve? उन्होंने डिमांड कर्व के बारे में पूछा. डिमांड कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा? कार्स विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया. पेट्रोल और कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी. तो पेट्रोल की डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट करेगी. पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल की डिमांड कम. पेट्रोल की डिमांड कम, कार की भी डिमांड कम, क्योंकि कार को चलाना डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव हो जाएगा. कार की डिमांड भी कम, तो कार की जो डिमांड कर्व है वो डिक्रीज हो जाएगी. सो पेट्रोल की डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कार की डिमांड डिक्रीज करेगी. अब देखते हैं क्वेश्चन में किसकी कर्व पूछी है. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड कर्व ऑफ कार्स विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज. लेफ्टवर्ड शिफ्ट. द राइट आंसर इज सी. राइट डाउन द राइट आंसर सी. Leftward shift. Write down the answer C. Leftward shift. क्योंकि कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. लेफ्टवर्ड शिफ्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए. डिक्रीज इन डिमांड ब्रैकेट में लिख दीजिए. डिक्रीज इन डिमांड. Question number 6. Question number 6. When the income of the consumer falls, the impact on price demand curve of inferior good. इनकम कम हो गई. अगर इनकम कम हो जाएगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी. इनकम कम होने से इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ेगी. डिमांड क्यों बढ़ रही है? प्राइस की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से. सो इट इज राइटवर्ड शिफ्ट, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड. राइटवर्ड शिफ्ट, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड. द राइट आंसर इज ए, शिफ्ट्स टू द राइट. सिक्स्थ का आंसर ए, shifts to the right. ब्रैकेट में लिखिए इंक्रीज इन डिमांड. ब्रैकेट में लिखिए इंक्रीज इन डिमांड.
नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज। केस स्टडी है, 3 मार्कर है। एयरटेल एंड सैमसंग कंपनीज, एयरटेल सिम देता है, सैमसंग फ़ोन देता है। फ़ोन और सिम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सिम के बगैर फ़ोन का कुछ खास काम नहीं होता और फ़ोन के बगैर सिम का कुछ खास काम नहीं होता। They decided to introduce a combination package through which the mobile phone instrument and the call charges are provided at cheaper rates to the customer. दोनों ने कोलैबोरेशन की है। आपको सैमसंग का फ़ोन 20% डिस्काउंट पे मिलेगा अगर आप एयरटेल का नंबर लेंगे और 1 साल तक चलाएंगे। एंड एयरटेल की कॉल रेट्स आपको सस्ती मिलेंगी। एयरटेल में आपको इंटरनेट फ्री मिलेगा या सस्ता मिलेगा अगर आप सैमसंग के फ़ोन में उसे यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन पैकेज निकाला है ये। एंड द कॉल चार्जेस आर प्रोवाइडेड एट चीपर रेट्स टू द कस्टमर्स। फ़ोन भी सस्ता, कॉल चार्जेस भी सस्ते। हाउ विल दिस इफेक्ट द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ एयरटेल सर्विस? एयरटेल की डिमांड कर्व पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? 3 मार्कर क्वेश्चन है, 1.5 ईच, तो पूरी एक्सप्लेनेशन कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये है डिमांड कर्व ऑफ एयरटेल सर्विस, मोबाइल फोन नहीं, एयरटेल सर्विस। एयरटेल सर्विस का प्राइस था ओपी, डिमांड थी ओक्यू, एयरटेल कॉल सर्विस। कॉल का रेट कम हो गया ड्यू टू लोअर कॉल चार्जेस। कॉल का रेट कम, कॉल्स ज्यादा। एक्सटेंशन, क्योंकि रेट कम हुआ है एयरटेल सर्विस का, इसीलिए डिमांड का एक्सटेंट बढ़ेगी। ड्यू टू लोअर प्राइसेस ऑफ हैंडसेट्स प्रोवाइडेड बाय सैमसंग। तो जो लोग पहले से एयरटेल और सैमसंग यूज कर रहे हैं, मेरा फ़ोन एयरटेल का ही है और सैमसंग का ही है, तो सैमसंग तो मुझे सस्ता पड़ेगा नहीं, मुझे फ़ोन चाहिए ही नहीं, पर एयरटेल की कॉल सस्ती पड़ जाएंगी तो एयरटेल की डिमांड बढ़ जाएगी, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होगा। बी, दिस इज एयरटेल, प्राइस इज ओपी, द डिमांड इज ओक्यू। जिनके पास सैमसंग फ़ोन था पर एयरटेल नहीं, वोडाफोन था, जिनके पास सैमसंग फ़ोन था बट एयरटेल की जगह वो वोडाफोन की सर्विस यूज़ कर रहे थे, उनको सैमसंग तो फ़ोन लेना नहीं है, वो क्या करेंगे, अब एयरटेल का सिम डिमांड करेंगे, एयरटेल की सिम की डिमांड बढ़ जाएगी। बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, D1। सो ये डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि रेट सस्ता हुआ एयरटेल की कॉल्स का, ये डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि सैमसंग के फ़ोन में लोग ज़्यादा एयरटेल के सिम्स लेंगे। अदर फैक्टर्स। 3 मार्कर, देयर इज नो नीड टू मेक 2 डायग्राम, 2 डायग्राम उसकी एक्सप्लेनेशन। कर्व्स मैंने बना दी हैं आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, लिखेंगे अभी सिर्फ, नो नीड टू मेक द कर्व। राइट डाउन आंसर ए। आंसर नंबर 11th, आंसर नंबर 11th का ए पार्ट, ड्यू टू लोअर कॉल चार्जेस फॉर एयरटेल सर्विस, there will be no change on the demand curve of Airtel service। एयरटेल सर्विस की डिमांड कर्व पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर डिमांड पड़ेगी, डिमांड कर्व नहीं। There will be rise in quantity demanded due to decrease in price and hence
downward movement along the same demand curve. Downward movement along the same demand curve. Full stop. It will be a case of extension in demand. It will be a case of extension in demand. सैमसंग के अंदर एयरटेल का सिम यूज़ करेंगे तो आपको सस्ता सिम मिलेगा, एयरटेल की कॉल चार्जेस कम मिलेंगे। आज के टाइम पे ऐसा होता है, अगर आप एयरटेल का बिल 500 से ज़्यादा लेके आएंगे तो आपको 1 ईयर का Z5 या नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम की 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। वही चीज़ है ऑलमोस्ट। Due to decrease in the mobile instruments price, due to decrease in the mobile instruments price, there will be rightward shift on the demand curve of Airtel service. Now, more will be demanded and hence will be known as increase in demand. Full stop. It is important to note that Samsung phones and Airtel service, in this case, is complementary goods. अच्छा, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, मेरे पास एयरटेल सर्विस है, बट मैं आईफोन ही यूज़ करना चाहता हूँ, मुझे सस्ती रेट्स नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स मैं इस मार्केट का पार्ट ही नहीं हूँ, मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ही नहीं। मैं आईफोन के साथ एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ या फिर सैमसंग के साथ वोडाफोन यूज़ कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द मार्केट नाउ। आई विल बी द पार्ट ऑफ मार्केट व्हेन आई विल बी यूजिंग बोथ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Question number 12. Please mark star. Important question it is. Question number 12. What is the effect on demand curve if the consumer income changes? अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है तो डिमांड कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले देखो गुड कौन सा, नॉर्मल की इन्फीरियर। हम गिफिन की बात नहीं करते क्योंकि गिफिन में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गिफिन गुड्स। इनकम चेंज हो रही है कि बढ़ रही है? क्या लिखा है, बढ़ रही है कि कम हो रही है? चेंज, दोनों। गुड कौन सा, नॉर्मल के इन्फीरियर? नहीं मेंशन, दोनों। दोनों एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल गुड। दिस इज द डिमांड कर्व। हियर वी हैव इज प्राइस and here we have is quantity demanded. When the price is OP, the quantity demanded is OQ. कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा। डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट टू D1,
ये जो शिफ्ट की है ये की है इंक्रीज इन इनकम की वजह से। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो डिमांड कम करेगा, इनकम कम होगी तो वो डिमांड कम करेगा। कौन सा? नॉर्मल गुड। डी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। D0 D0 and this is due to decrease in income, due to 4 मार्कर क्वेश्चन है। उन्होंने बोला इनकम चेंज हो रही है, इनकम चेंज का मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों। गुड बोला ये नहीं पता नॉर्मल के इंफीरियर या गिवन, गिवन की हम बात नहीं करते तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एंड इंफीरियर बोथ। अभी केस 2 इंफीरियर में जाएंगे। हेडिंग दीजिए केस 1 12th का आंसर, 12th का आंसर लिखिए। केस 1 नॉर्मल गुड, केस 1 normal good, write down the explanation, write down the explanation. The income effect in case of normal good, क्योंकि 2 डायग्राम है तो मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम दे रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ये नहीं जितना आता है सब लिख दो, क्वेश्चन के हिसाब से लिखने हैं। तो नॉर्मल गुड की एक्सप्लेनेशन, द इनकम इफेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड इज पॉजिटिव। द इनकम इफेक्ट ऑफ नॉर्मल गुड इज पॉजिटिव। It means with the increase in income, it means with the increase in income, DD will shift to the right to D1 D1, DD will shift to the right to D1 D1, that is increase in demand, that is increase in demand, full stop. On the other hand, comma, on the other hand, comma, due to decrease in the income of the consumer, due to decrease in the income of the consumer, DD will shift to the left, that is decrease in the demand. DD will shift to the left, that is decrease in demand. Following figure will explain this point more clearly. Following figure will explain this point more clearly. Now I am giving you 2 minutes. Please make this diagram. ये डायग्राम बनाइए फॉर 2 मिनट्स। इसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, इसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे तो फिर इन्फीरियर की भी देनी पड़ेगी। हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दी है और इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम। देखिए राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट सब नज़र आ रही है। तो पहले DD डाउनवर्ड स्लोप बना देंगे, फिर लेफ्ट वर्ड D0 D0, फिर राइट वर्ड D1 D1, जिसे डॉटेड लाइन से शो करेंगे। जब प्राइस था OP
तो क्वांटिटी थी ओ क्यू, और जब कम हो गई तो ओ क्यू 0. प्लीज मेक दिस डायग्राम. नाउ केस 2 हेडिंग दे दीजिए, केस 2. inferior good. Case 2, inferior good. Write down the explanation. Write down the explanation. Inferior good. inferior good में क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट. इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी. द नेगेटिव इम्पैक्ट इज देयर. सो लिखिए इंफीरियर गुड के बारे में पहले. द इनकम इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड, द इनकम इफेक्ट of inferior good is negative, full stop. It means with the increase in income there will be decrease in demand. It means comma, with the increase in income there will be decrease in demand. That is leftward shift of the demand curve. That is leftward shift of the demand curve. Full stop. Similarly, with the decrease in income of the consumer, similarly, comma, with the decrease in the income of the consumer, there will be increase in the demand of the inferior good.
there will be increase in the demand of the inferior good. Full stop. This will be shown by the rightward shift of the demand curve. This will be shown by the rightward shift of the demand curve. Full stop. Following figure will explain this point more clearly. Following figure will explain this point more clearly. ओके पहले मुझे डायग्राम बनाने दीजिए, आपको बाद में 2 मिनट मिल जाएंगे ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए. यू विल गेट 2 मिनट्स टू ड्रॉ दिस डायग्राम. पहले समझ लीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ. ऑन द एक्स एक्सिस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन द वाई एक्सिस इट्स प्राइस. This is the demand curve of inferior good. I repeat, this is the demand curve of inferior good. When the price of the commodity is OP, the quantity is OQ. जब inferior good OP पर बिक रहा था तो quantity OQ थी. अब जैसे ही कंज्यूमर की इनकम कम हुई, वो नॉर्मल गुड की जगह इंफीरियर की डिमांड बढ़ा देगा और DD शिफ्ट कर जाएगी D1 दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट. This is due to decrease in income या fall in income. इनकम बढ़ गई, कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि इंफीरियर गुड है. इसी तरीके से अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो इंफीरियर गुड को डिमांड नहीं करना चाहेगा, तो वो इंफीरियर गुड की डिमांड कम कर देगा. जब एक पर्सन ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएगा तो वो बाजरा की डिमांड कम कर देगा, इसीलिए वीट की डिमांड बढ़ा देगा. वीट की डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करेगी और आप देख सकते हैं देयर वुड बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट. क्यों डिमांड कम हुई? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई और Q हो गया Q0 एंड दिस लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज ड्यू टू increase in income, due to increase in income. So I am giving you 2 minutes. ये 2 मिनट लगाइए और ये डायग्राम को ड्रॉ कीजिए. ये आपका 4 मार्कर क्वेश्चन था. 2 for the normal, 2 for the inferior. Kindly draw this diagram. Okay, question number 13th. Please mark important question. Question number 13th.
Distinguish between increase in demand and expansion in demand. Distinguish between increase in demand and extension in demand. T shape. Please make a T shape. 4 mark question है, 4 points would be sufficient. Basis, increase in demand, extension in demand. Basis, increase in demand, extension in demand. First, meaning. पहले increase in demand में, it refers to a rise in the demand of a commodity. It refers to a rise in the demand of a commodity. It refers to a rise in the demand of a commodity caused due to any factor, except its own price, दूसरी तरफ when the quantity demanded rises, extension में लिखिए, when the quantity demanded rises due to decrease in the price, comma, keeping other factors constant, comma, it is known as extension in demand. Number two, reason. इंक्रीज इन डिमांड के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लिखिए. इट अकर्स ड्यू टू फेवरेबल चेंज, in the other factors like increase in the price of substitute good, comma, decrease in the price of complementary good, comma, increase in the income in case of normal good, etc. दूसरी तरफ इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज, डिमांड बढ़ रही है प्राइस की वजह से, एक ही रीजन है इसका. तो इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज in the price of the commodity itself. It occurs due to decrease in the price of the commodity itself. Third,
tabular presentation. Third, tabular presentation. This is increase in demand. ये increase in demand है. ये extension in demand है. This is increase in demand. प्राइस सेम डिमांड ज़्यादा. दिस इज एक्सटेंशन इन डिमांड, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा. थर्ड, टेबुलर प्रेजेंटेशन. फोर्थ, इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व. फोर्थ, इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व. This, there is a downward movement along the same demand curve. There is a downward movement along the same demand curve. Sorry, पहले increase में लिखना है. Increase में there is a rightward shift in the demand curve. Increase में लिखेंगे हम, there will be rightward shift on the demand curve. इस तरफ there is a downward movement along the same demand curve. There is a downward movement. इस केस में प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है. डाउनवर्ड, प्राइस कम हो रहा है. There is a downward movement along the same demand curve. अगर आप डायग्राम्स बनाना चाहते हैं तो डायग्राम्स बना सकते हैं. इफ यू वांट टू मेक डायग्राम यू मे मेक डायग्राम. तो आप लिख लीजिए इंक्रीज इन डिमांड में जो आपने लिखे इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व. देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. इंक्रीज इन डिमांड में आपने लिखा देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. ब्रैकेट में लिखिए रेफर पेज 46. रेफर पेज 46. और इधर आपने लिखा है देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. ब्रैकेट में लिख लीजिए रेफर पेज 44. रेफर पेज 44. कूल. इससे रिलेटेड और भी बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. और बिल्कुल सिमिलर आप आंसर लिख सकते हैं, मुझे चेक करा देंगे कोई प्रॉब्लम होगी. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसके नीचे लिख दीजिए सिमिलर क्वेश्चन. हमने किया डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सटेंशन. हमने किया डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सटेंशन. तो आप लिख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस लिखना है. हमने इंक्रीज और एक्सपेंशन का डिफरेंस लिखा है, राइट. So we are done with this question. We are left with certain questions more related to this topic, जो हम करेंगे लेक्चर नंबर 7 में. अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसके काफ़ी क्वेश्चंस पेंडिंग है. We still have around 5-7 questions. We'll be doing it tomorrow in the lecture number 7. Till then, bye bye, take care, God bless.